Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the chromatic polynomial and the theorems of the chromatic polynomial. This topic is very important for your exam and you can expect at least 2 questions from this topic carrying 5 marks. So you can understand how much important this topic is. Before we go to this topic, I want to say that please follow the previous video lecture to understand this lecture. Okay, so let us start. So what is the chromatic polynomial? Chromatic polynomial क्या होता है? देखो, so if we have x number of colors in our hand and we want to color a graph with x number of colors or fewer colors, x का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है. x का वैल्यू 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है. सपोज x नंबर ऑफ कलर्स है हमारे पास और x नंबर ऑफ कलर से हम लोग को एक ग्राफ को कलर करना है. कैसे कलर करना है? डिफरेंट वे पे कलर करना है. सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कलर करने के लिए तो 100 कलर नहीं लगेगा. तो ये बात पहले समझो. सपोज वी हैव ए स्क्वायर इन आवर हैंड, so to color the all vertices of the square we need exactly 4 different colors. तो मैं सपोज रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू से कर रहा हूं. दूसरा कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट से करूंगा. तीसरा कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मैं कोई और 4 डिफरेंट कलर से करूंगा. तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? एक्स नंबर ऑफ कलर्स वी हैव इन आवर हैंड एंड वी वांट टू कलर द ग्राफ इन डिफरेंट वे. So whenever we express the total number of different coloring, that is the way of different coloring to a, whenever we want to color a graph, it is actually representing like a polynomial of x, where x is nothing but a variable. So that type of polynomial is actually known as a chromatic polynomial. So simply I want to say that what is the chromatic polynomial? That is, whenever we have x number of colors or fewer colors in our hand, then the number of different coloring of a graph, with x number of colors or fewer colors is generally an expression or a polynomial of x, and which is known as a chromatic polynomial. And the general form generally we denote it by f of g comma x. It is a function of the graph as well as the x. Now how we will evaluate the chromatic polynomial? There is a formulation for the chromatic polynomial. तो पहले आज हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो थ्योरम एग्जाम में बार बार रिपीट होता है. उसको लेके हम लोग कुछ सिंपल सा ग्राफ को क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे. मेरा जो दूसरा वीडियो लेक्चर होगा इसके ऊपर, उसमें हम लोग डिफिकल्ट टाइप ऑफ ग्राफ को क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे और उसके बाद उसको डिकम्पोजिशन थ्योरम्स पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पहले चलते थे आज के थ्योरम पे. तो सपोज लो हमारे पास एक ग्राफ है जैसे ट्राइंगल से ABC विद द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल and we want to color this graph and we have x number of colors in our hand. So obviously you can see that this graph is nothing but a complete graph, so you cannot give the color of A to any one of the vertices, that is B or C. तो A के अगर हम लोग रेड कलर से कलर कर देते हैं तो B और C को हम लोग रेड कलर नहीं दे सकते. तो हमारे पास अगर x नंबर ऑफ कलर है तो A को हम लोग कितने वे पे कलर कर सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट वे वी कैन कलर द वर्टेक्स A, that is the x possibilities are there. So whenever you fixed the one color to the vertex A, that color cannot be assigned to C, B. So the number of possibilities of different coloring will be x minus 1, and similarly the possible coloring of C will be x minus 2. So what is the total possible colorings with x or fewer colors is nothing but the product of these variations. That is, for this one is x, this one is x minus 1, this one can be done by x minus 2 ways. So what is the total value? That is x into x minus 1 into x minus 2. So obviously you can see it is nothing but representing a polynomial. So that is the chromatic polynomial of this graph. You can understand. Now one important note I want to tell you, that from the chromatic polynomial we can measure the chromatic number of a graph. तो ये ग्राफ को हम लोग अगर कलर करना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर हम लोगों को लगेगा 3. हम लोग जानते हैं क्योंकि ये एक क्लिक है. क्लिक के बारे में मैंने तुम लोग को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कहा है. अगर भूल गए हो तो उसको पहले अगर देख लो. तो क्लिक में तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर लगेगा, इसके लिए हमारा 3 कलर्स हम लोग को लगेगा. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं. तो 3 कैसे निकालेंगे? देखो, क्रोमाटिक पॉलिनोमियल में जो x का एक्सप्रेशन आएगा उसमें x का लिस्ट वैल्यू जिसके लिए क्रोमाटिक पॉलिनोमियल वैनिश नहीं होता है वो होता है क्रोमाटिक नंबर. फिर से बताता हूं, x का जो लिस्ट वैल्यू है जिसके लिए क्रोमाटिक पॉलिनोमियल वैनिश नहीं होगा वो हो जाता है क्रोमाटिक नंबर. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2,
is our expression, and if you put x equal to 0, this polynomial will vanish. If you put x equal to 1 as well as x equal to 2, this polynomial will vanish. But if you put x equal to 3, then this polynomial will not vanish. So what will be the chromatic polynomial of this graph? That is equal to 3. That is the least value of x for which the chromatic polynomial does not vanish. Okay. Now what is the formula for finding chromatic polynomial of a graph? So suppose हमारे पास एक ग्राफ है जो एक स्पेशल फॉर्म के अंदर नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो ग्राफ का नेचर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट ग्राफ हो सकता है, रेगुलर ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेनर ग्राफ हो सकता है. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज द जनरल फॉर्मूला आई एम सेइंग हियर. In the next day, whenever I give you the difficult type of problems on the chromatic polynomial, then we will apply these formulas. Okay, so if G be a connected graph with n number of vertices, the chromatic polynomial will be like this. That is lambda 1 x c1, c for combination, x number of colors we have to choose one color out of x color, lambda 2 into x c2 dot dot lambda n into x cn if you have n number of vertices in our hand. So obviously lambda 1, lambda 2, lambda n are nothing but the constants, and how we can find out the values of these constants? Lambda I are nothing but the number of different coloring with I number of colors. सपोज हमारे पास एक कलर है, तो एक कलर से हम लोग ग्राफ को कैसे कलर कर सकते हैं? जो भी जितना भी पॉसिबिलिटी होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, वो परमुटेशन वैल्यू हम लोग लैम्डा 1 पे बिठाएंगे. नंबर ऑफ वेज है, ठीक है. तो मैंने तुम लोग को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दौरान मैं तुम लोग को बताया था कि अगर हम लोग कहीं पे भी ये टर्म देखते हैं अरेंजमेंट, तो वो हो जाता है परमुटेशन. अगर है सिलेक्शन, तो वो हो जाता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना. तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n क्या है? परमुटेशन है. सपोज हमारे पास एक कलर है, तो एक कलर से कितना परमुटेशन कर सकते हैं? दो कलर है, दो कलर से अगर ग्राफ को कलर कर सकते हैं तो कितना परमुटेशन होगा? तो वो हो जाता है ये वैल्यूज, ठीक है. तो इसके बारे में मैं आज नहीं बताता हूं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो आज मैं दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स तुम लोग को बता देता हूं जो मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है. The theorem number 1 says that the chromatic polynomial of a complete graph with n number of vertices is x into x minus 1, x minus 2 up to x minus n minus 1. Obviously you can see from my example that is, it is nothing but a chromatic polynomial of a complete graph, and it is giving the same result that I am want to prove here. Okay, so let us start with the proof. So suppose हमारे पास एक ग्राफ है G जिसमें n number of vertex है. Say the vertices are v1, v2 up to vn. तो कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है? दोनों वर्टेक्स के बीच में एक कॉमन एज रहेगा. बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस देयर मस्ट बी एन एज. सो अगर v1 को कोई भी एक कलर हम लोग दे देते हैं, तो वो कलर हम लोग v2, v3, vn किसी जगह पे हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं. तो x नंबर ऑफ कलर्स है हमारे पास, तो v1 पे हम लोग कितने डिफरेंट वे पे कलर कर सकते हैं? x वेज पे कलर डिफरेंट कर सकते हैं. तो v1 पे अगर कोई भी एक कलर हम लोग पुट कर देते हैं, तो वो कलर v2 पे असाइन नहीं होगा. तो v2 में कितने कलर से हम लोग कलर कर सकते हैं v2 को? x माइनस 1 कलर से. अभी v3 पे चले आते हैं, तो उसके लिए हम लोग कितना कलर यूज कर सकते हैं? एक नंबर एक v1 के लिए चला गया, दूसरा नंबर v2 के लिए चला गया, तो तीसरे नंबर है, तो x माइनस 2 number of colors can be used to color the vertex v2, so v3. So if you continue this way, obviously the last vertex will be colored with x minus n minus 1 number of colors different way. So the total possibility will be x into x minus 1, x minus 2 dot dot up to x minus n minus 1. तो हम लोग को हर वक्त ये याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना. तो अरेंजमेंट होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं. नेक्स्ट थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड इट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स. ओके, सो डोंट forget to remember this result also, because from this result we can directly prove some problems. Okay, so the chromatic polynomial of a tree with n number of vertices is x into x minus 1 to the power n minus 1. इसको प्रूफ करना है कि सपोज हमारे पास x नंबर ऑफ कलर्स है, तो और n नंबर ऑफ वर्टेक्स है एक ट्री पे, तो उसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x into x minus 1 to the power n minus 1. कैसे करेंगे? ठीक है, सपोज हमारे पास एक ग्राफ है और ट्री है, G be a tree with n number of vertices. So we will simply apply the principle of mathematical induction to understand this theorem. Okay, suppose we are applying for principle of mathematical induction for n equal to 1. सपोज हमारे पास n इक्वल टू 1 है, एक ही वर्टेक्स है, तो अगर ये ट्री है तो इट मींस इट इज एन असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ. सो अगर n इक्वल टू 1 है तो कोई भी
एज नहीं रहेगा, आइसोलेटेड होकर रहेगा, तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है अगर, तो उसके लिए हम लोग को कितने कलर है, हमारे पास एक्स नंबर ऑफ कलर्स है, तो एक्स नंबर ऑफ कलर से ही हम लोग को उसको कलर कर सकते हैं। एक एक जगह पे एक एक कलर देंगे ना, अगर रेड देंगे कलर हो गया, ब्लू देंगे कलर हो गया, ग्रीन देंगे कलर हो गया, तो एक्स नंबर ऑफ कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वर्टेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सो how many different way we can color the single vertex, that is x. So whenever you put n equal to 1 in this expression, you can see that it is coming x now, n minus 1, that is 1 minus 1 will be 0, x into x minus 1 to the power 0, that is nothing but giving us the x. So result is true for n equal to 1. अभी सोचो n equal to अगर 2 है, तो n equal to अगर 2 होगा तो हमारे पास दोनों वर्टेक्स है और उसके बीच में एक ही एज होगा, तो अगर दोनों वर्टेक्स के अंदर एक ही एज है तो ये हो गया कि कंप्लीट ग्राफ विथ टू वर्टिसेस। ठीक है, तो अगर पहला जो वर्टेक्स है उसको x नंबर ऑफ कलर से कलर करेंगे, तो दूसरा जो एंड होगा उसको x माइनस 1 से कलर करेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट कर दो तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाता है, तो रिजल्ट n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेस करके पकड़ लेते हैं n इक्वल टू m के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। Now we consider a tree, that is the theorem says that is our assumption is that if we have a tree with m number of vertices, then the chromatic polynomial will be x into x minus 1 to the power m minus 1। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, m plus 1 के लिए प्रूफ करेंगे। So let us consider a tree capital T with m plus 1 number of vertices। तो अभी देखो, अगर कोई ट्री है हमारे पास तो उसमें कुछ ना कुछ पेंडेंट वर्टेक्स होगा ही होगा। समझ, हमारे पास ये एक ट्री है तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने एक पेंडेंट वर्टेक्स भी लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारा पेंडेंट वर्टेक्स है, तो कोई भी ट्री पे एक ना एक तो पेंडेंट वर्टेक्स रहेगा ही रहेगा, तो वो पेंडेंट वर्टेक्स को हम लोग ले लेते हैं। तो अगर ये पेंडेंट वर्टेक्स को हम लोग हटा देंगे ये ट्री से, तो ट्री पे कितना वर्टेक्स बचेगा, m नंबर ऑफ वर्टेक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि ट्री पे कितना वर्टेक्स था, m plus 1 number of vertex था, तो t से अगर v को हटा देंगे तो how many vertex left we have in our tree, that is m number of vertices। So if we have m number of vertices, then by our assumption the chromatic polynomial will be t x into x minus 1 to the power m minus 1। अभी देखो ये vertex को ऐड करेंगे और कैसे उसको कलर करेंगे। Since this vertex is a pendant vertex, so it will be adjacent to exactly one vertex in this graph। एग्जैक्टली वन वर्टेक्स के साथ ही ये एडजेसेंट होगा क्योंकि ये पेंडेंट वर्टेक्स है। अभी सोचो u है हमारा ए वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के साथ भी एडजेसेंट है, तो u को हम लोग कितने कलर से कलर कर सकते हैं, x नंबर ऑफ कलर से कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो u को अगर x नंबर ऑफ कलर से कलर करेंगे तो वो कलर हम लोग v पे असाइन नहीं कर सकते, उस कलर को छोड़ दो, v के लिए कितना कलर लगेगा, x माइनस 1 कलर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर v को हम लोग एंटर करेंगे, ट्री पे वापस जोड़ देंगे, तो हमारा पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा, पहले ही था x इंटू एक्स माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1, और v को अगर एंटर करते हैं तो उसके लिए और एक x माइनस 1 फैक्टर आ जाता है। तो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द ग्राफ विल बी व्हाट, x इंटू एक्स माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1 बाई आवर प्रीवियस अजम्पशन, v को ऐड कर दिया, इसके लिए x माइनस 1 पॉसिबिलिटी इज अगेन मल्टीप्लाइड, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 टू दी पावर m। तो m को अगर हम लोग सोचेंगे m प्लस 1 माइनस 1 तो वो सही है, तो ये ट्रू है m प्लस 1 के लिए। Hence by principle of mathematical induction the result is true for all values of n। Next go to some problems। Find the chromatic polynomial of this quantity, this graph। So obviously you can see it is nothing but a tree। तो यहाँ पे ढूंढो कितना वर्टेक्स है, यहाँ पे 12 वर्टेक्स है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो ये आ जाता है। सोचो ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स का दिया हुआ था, 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया है और ये 5 मार्क्स का ये प्रॉब्लम था। तो अगर इतना तुम लोग 2 लाइन में लिखोगे तो ऑब्वियसली नंबर नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा नंबर, ये प्रॉब्लम को पहले हम लोग को प्रूफ कर देना है, प्रूफ करके ये लाइन को ऐड कर दो। ठीक है, तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चले आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, जो कहता है फाइंड ए क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस। तो सपोज हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है और उसके कितना वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स है। ठीक है, तो हम लोग को उसको क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है, 2 केस कंसीडर नहीं करता है, एक केस कंसीडर करके उसको ड्रॉ करके चला आता है। ठीक है, और वहां पे नंबर डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ऑब्वियसली द ग्राफ विल बी ए सिंपल ग्राफ, बिकॉज इफ देयर इज एनी सेल्फ लूप और पैरेलल एज इज प्रेजेंट देन वी कैन नॉट कलर द वर्टिसेस। तो जी अगर कनेक्टेड ग्राफ है 3 वर्टेक्स को लेके, तो जी का फॉर्म कैसा होगा, आइदर ये हो सकता है दैट इज कंप्लीट ग्राफ विथ 3 वर्टिसेस, या फिर ट्री हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर कंप्लीट ग्राफ होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, मैंने इसको पहले प्रूफ किया है। और अगर ट्री होगा तो यहाँ पे अभी मैंने प्रूफ किया है, वो क्या हो जाता है, x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर।
हो गया मेरा आंसर, 5 मार्क्स मिल गया। तो कितना आसान है तुम लोग सोच सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कुछ भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले आते हैं। फॉर ईच ग्राफ जी द कांस्टेंट टर्म इन इट्स क्रोमेटिक पॉलिनोमियल मस्ट बी जीरो। अगर कोई भी ग्राफ का हम लोग क्रोमेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, ग्राफ के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, नल ग्राफ हो सकता है, नॉन नल ग्राफ हो सकता है, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल है ना, तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट टर्म रहेगा एंड पे, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो। लेट द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ग्राफ इज नथिंग बट दिस फॉर्म, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, तुम लोग जानते हो ये पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है डिग्री n का, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 x प्लस an। तो अभी ग्राफ क्या है, कोई भी ग्राफ है, तो कोई भी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर कितना होता है, कोई भी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर होता है 1 या फिर उससे ज्यादा। अगर ग्राफ नाल ग्राफ है तो उसको हम लोग कितने कलर से कलर कर सकते हैं, मिनिमम एक कलर से कलर कर सकते हैं। तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ एनी ग्राफ इज स्टार्टिंग विथ 1 और हायर, सो काई जी विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1। तो क्रोमेटिक नंबर अगर 1 या फिर उससे ज्यादा है तो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल किस वैल्यू के लिए वैनिश हो जाएगा। मेरे नोट पे चले जाओ, नोट पे मैंने क्या बोला था, the least value of x for which the chromatic polynomial does not vanish is nothing but the chromatic number। ठीक है, तो उसके पहले x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो काई जी तो 1 या फिर उससे ज्यादा के लिए वैनिश नहीं होगा। तो काई जी किसके लिए, मैंने एफ ऑफ जी कॉमा एक्स, सॉरी एफ ऑफ जी कॉमा एक्स का 1 या फिर उससे ज्यादा वैल्यू के लिए x का x 1 या फिर उससे ज्यादा वैल्यू के लिए वैनिश नहीं होगा। तो x के कौन से वैल्यू के लिए वैनिश हो जाएगा, अगर x को हम लोग जीरो पकड़ते हैं तो x को जीरो भी यहाँ पे बिठा दो और यहाँ पे क्या मिल जाता है, देखो ये सभी टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई है। कौन सा टर्म रह जाता है, an क्या था, ये पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म था, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। प्रूफ हो गया, 2-3 लाइन का प्रूफ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोला है यहाँ पे, इफ ए ग्राफ जी हैज एटलीस्ट 1 एज, तो इसका मतलब ग्राफ हो गया नॉन नल ग्राफ, देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल मस्ट बी जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे कोई भी एक नॉन नल ग्राफ के लिए, तो उसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है वो सभी को अगर ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ प्रूफ है। पहले हमने पकड़ लिया कि ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ द क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ नॉन नल है तो नॉन नल ग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 या फिर उससे ज्यादा। नॉन नल ग्राफ है मतलब क्या है, एक सिंगल एज है, तो अगर सिंगल एज होगा तो उसको कलर करो तो कितना कलर लगेगा, मिनिमम 2 कलर्स लगता है, ठीक है ना। एक होता रेड, दूसरा ब्लू पकड़ लो। तो हम लोग अगर नॉन नल ग्राफ को कलर करना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम हम लोग को 2 या फिर उससे ज्यादा कलर लगता है। तो क्रोमेटिक पॉलिनोमियल किसके लिए वैनिश हो जाएगा, 2 के लिए नहीं वैनिश होगा, तो किसके लिए वैनिश होगा, 0 के लिए वैनिश होगा, 1 के लिए वैनिश होगा। तो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करने के लिए ये वैनिश हो जाता है, तो ये वैनिश होगा x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो 1 पुट कर दो, a0 a1 a2 an आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा बाय द थ्योरम, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। हो गया प्रूफ। प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 का एक्चुअली जनरल वर्जन है, कोई पर्टिकुलर वर्जन है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर प्रॉब्लम नंबर 3 या फिर प्रॉब्लम नंबर 4 से करना चाहते हो तो उससे भी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स आई थिंक, एंड वी विल लेफ्ट विथ एग्जैक्टली वन टॉपिक in the graph coloring, that is the some problems of the difficult type of graphs with chromatic polynomial, उसको निकालना है। और उसके बाद है डिकम्पोजिशन थ्योरम, एक क्लास लगेगा और वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा और हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद तुम लोग जानते हो ये सिलेबस कितना बड़ा है, इसीलिए मैं तुम लोगों की हेल्प के लिए ये सभी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू share it with all of your friends.